Now I would like to request all respected dignitaries to come forward for Saraswati Pujan. शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। मीरा बारी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती। Continue to inspire everyone who meets him. For our students, his presence today is a living example that passion backed by education, values, and perseverance can lead to excellence. He reminds us that success is not measured by fame, but by the impact we create and the integrity we maintain. On the behalf of entire school family, I extend a warm and heartfelt welcome to our honorable chief guest, Mr. Saurabh sir. I would like to request our respected principal ma'am to felicitate Honorable Saurabh Daspute sir. Saurabh sir has performed with many renowned celebrities like Prabhu Deva, Shahid Kapoor, and many more. Sir got many national awards like High Range Outstanding Choreographer Award, International Prime Award, Best Choreographer Award from the Magic Book of Record. Sir has also choreographed for Marathi films like Friendship Be Alert and Dagda Baichi Sada. We are very fortunate to have you, sir, with us today. Educationalists are like stars. They illuminate minds, guide generations, and shine quietly yet powerfully. I would like to request Honorable N.D. Pingle sir to felicitate Honorable Shamrao Deshmukh sir. आज हमें अत्यंत गर्व और हर्ष है कि इस सितारों के सफ़र में हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री श्यामराव देशमुख सर। देशमुख शिक्षण संस्थान के कर्ता करविता हैं। आपकी सोच ने न जाने कितने छात्रों के भविष्य को रोशन किया है और आज आपकी उपस्थिति इस मंच को विशेष गरिमा प्रदान कर रही है। धन्यवाद सर। I would like to request respected Sheetal Tirekar ma'am to felicitate Tejal Dighe ma'am. Like a North Star, ma'am leads by an example, providing a steady and brilliant light that guides both teachers and students towards their path of success. With her dashing personality and positive attitude, Tejal ma'am shines as the brightest star in the ANT International School galaxy, radiating fairness and inspiring everyone around her.
I would like to request respected Principal Ma'am to felicitate Mrs. Shilpa Bhandari Ma'am, HM of Poddar Little Maestros. Shilpa ma'am is a constant star in the Poddar Little Maestros. Her unwavering dedication to academic excellence provides a steady light that never fades. Shilpa ma'am embodies excellence, serving as a guiding star that ensures our academic standards are as high and brilliant as the night sky. Now I would like to request respected Principal Ma'am to felicitate Mrs. Ashwini Kulkarni Ma'am, Principal of Apex Preschool. Ashwini ma'am is like a sun, a star that provides warmth through her compassion and understanding, ensuring that every student at Apex Preschool feels seen and supported. True educators don't just teach, they shine. Ashwini ma'am's compassionate heart is the light that helps our young minds navigate their very first step in learning. We are very honored to have such luminaries. Thank you for joining our orbit. Now I would like to request Principal Ma'am to felicitate respected N.D. Pingre Sir, our beloved trustee. आपके मार्गदर्शन, दूरदर्शिता और निस्वार्थ सेवा भाव से हमारी संस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान उस ध्रुव तारे के समान है जो हर परिस्थिति में दिशा दिखाता है। धन्यवाद सर। Now I would like to request respected Principal Ma'am to felicitate respected Sheetal Tidekar Ma'am. आपकी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और निरंतर मार्गदर्शन से हमारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। आप संस्था के लिए उस सूर्य के समान है जिसके प्रकाश से हर विद्यार्थी एक सितारा बनकर चमकता है। धन्यवाद मैम। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे विशिष्ट अतिथि और सम्माननीय मुख्य अतिथियों के लिए। उत्साह थोड़ा कम दिख रहा है मुझे सभी अभिभावकों में। जोरदार तालियां एक बार। Now I would like to request respected Sheetal Tidekar Ma'am to felicitate respected Principal Ma'am. Our beloved principal, Abha Parmar ma'am, is a truly dynamic personality with rich national and international experience in education sector. She brings vision, innovation and inspiration to our institution. Fond of art and deeply interested in emerging technologies, she is a beautiful balance of creativity with modern learning. Above all, she strongly believes in values, integrity and holistic education, making her इंटरनॅशनल स्कूल यांचं आज वार्षिक स्नेहसंमेलन ॲन्युअल गॅदरिंग या ठिकाणी पार पडत असताना आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले प्रमुख पाहुणे, त्याचबरोबर संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय एन.डी. पिंगळे सर, त्याचबरोबर संस्थेच्या सर्व म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही डॉक्टर शीतल टिळेकर मॅडम, प्रिन्सिपल आभा मॅडम, उपस्थित सर्व प्रमुख पाहुणे, इतर शाळांचे प्रिन्सिपल, मान्यवर, त्याचबरोबर सर्व पालक भगिनी आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्र, खरोखर सांगण्यात आणि या ठिकाणी उपस्थित राहण्यात विशेष आनंद वाटतो की खऱ्या अर्थाने जर ज्ञानगंगा चाकणमध्ये कोणी आणली असेल तर आमच्या पिंगळे सरांनी त्या ठिकाणी आणलेली आहे। अनेक वर्ष आपण चाकण म्हणतो की खूप मोठं गाव आहे, तालुक्यातलं 90 जिल्ह्यातलं मोठं गाव आहे। इंडस्ट्रीमध्ये म्हटलं तर जगात डेट्रॉइट सिटी जसे कार निर्मितीमध्ये आहे तसं आपलं चाकण कार निर्मितीमध्ये आहे। परंतु शिक्षणाचं काय?
शिक्षणाच्या बाबतीत खरं तर कुणीच पुढे या ठिकाणी येत नसताना पिंगळे सर या मातीत रुजलेलं नेतृत्व आहे. पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळामध्ये रिटायरमेंटचा त्यांचा समारंभ चालू असताना त्यांना सुचलं की उर्वरित आयुष्यात आपण काय करायचं. आणि सरांनी अनेक संस्था त्या ठिकाणी पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या त्या ठिकाणी उभारल्या आणि त्यांनाही वाटलं आपण या संस्थेसाठी इतक्या शिक्षण संस्था उभारत असताना का नाही आपल्या भागातील मुलांसाठी आपल्या भागातील सर्वसामान्य माणसांसाठी एखादी शिक्षण संस्था त्या ठिकाणी उभारावी. आणि वयाच्या 58-59व्या वर्षी माणूस ज्यावेळी रिटायर होतो आणि अत्यंत शांततेत जीवन जगायचं स्वप्न बघतो त्यावेळी नवीन उमेद घेऊन सर कामाला लागले आणि पहिलं चाकणमध्ये B.Ed कॉलेज त्या ठिकाणी सुरू केलं. विशेष आहे आजच्या अनेक तरुणांना आपण विचारलं 25-30-35च्या तर म्हणतात नाही आता खूप थकलोय, आता काय करायची इच्छा राहिली नाही. अरे बघा म्हटलं सरांकडे आमचा ऊर्जा स्त्रोत सर आहेत. स्वतःची शिक्षण संस्था उभारता आमच्यासारख्या अनेक शिक्षण संस्थांना सरांनी मदत केली. किंबहुना कोणतीही अडीअडचण असू द्या आम्ही सरांना रात्री 12 वाजता पण फोन करून विचारू शकतो सर अशी अशी प्रॉब्लेम आहे काय करायला लागेल. आणि प्रत्येक वेळी अत्यंत अचूक मार्गदर्शन सर सर्व संस्थांना करत असतात. आज पुणे जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण क्षेत्रांमध्ये आदराने असं सरांचं नाव घेतलं जातं. आणि त्याचबरोबरीने सर्व आज जवळजवळ 10 ते 12 फॅकल्टी आपल्या 9 सह्याद्री चॅरिटेबल ट्रस्ट या ठिकाणी चालवत असताना आता नवीनच लॉ कॉलेज त्या ठिकाणी होते, D.Ed आहे. अनेक आपल्यातले सर्व कामगार बंधू अनेक जिल्ह्यातून नव्हे भारतातून आपल्या चाकणला आलेले असताना अनेक जणांचं शिक्षण नव्हतं, ग्रॅज्युएशन नसताना त्यांना कुठंतरी ग्रॅज्युएट पदवी असावी म्हणून सरांनी रात्रीचं नाईट कॉलेज त्या ठिकाणी सुरू केलं. ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता ज्ञानाची आहे त्या ठिकाणी सरांनी चालू केलं. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा त्यांना राजकीय तसा कोणताही पाठिंबा नसताना स्वकर्तृत्वाने स्वतःच्या हिमतीने या इतक्या संस्था सुरू करणं खरोखर आजच्या घडीला खूप अवघड आणि अतिशय खडतर अशी गोष्ट आहे. परंतु सर्व संस्था आज चाकणमध्ये चांगल्या पद्धतीने चालत आहेत. अनेक नवयुवक खरोखरच ज्यांना वाटत होतं की आपण कुठेतरी डिग्री असावी आज नाईट कॉलेजला शिक्षण घेऊन ते ग्रॅज्युएट होत असताना आज कुठेतरी त्यांना नोकरी मिळत आहेत. आज नवीन नवीन संकल्पना सरांच्या सतत डोक्यामध्ये असतात आणि डोक्यात असणं वेगळं आणि अंमलात आणणं वेगळं. आणि नवीन नवीन दरवर्षी सर एकतरी फॅकल्टी नवीन नवीन संस्था या ठिकाणी सुरू करत असतात. अशा या संस्थेला मी उपस्थित आपल्या सर्वांतर्फे खेड तालुक्यातील सर्व इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या ट्रस्टीज असोसिएशनतर्फे आणि आमच्या चाकणकर सर्व नागरिक यांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. आपल्या संस्थेची या शाळेची अशीच प्रगती दरवर्षी होत राहो अशीच या ठिकाणी आशा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा शाळेला आणि संस्थेला आणि आज जे कार्यक्रम करतायत त्या सर्व मुलांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देशमुख सर, आज के चीफ गेस्ट कोरियोग्राफर प्रशांत पाटिल सर, सभी शिक्षक, शिक्षकेतर व पालकगण, अभी अभी एक बड़ी अच्छी बात हमने देखी कि यहाँ पर इस मंच पर बच्चों के साथ साथ टीचरों का भी सम्मान किया जाता है. और यह बात आप सभी के लिए एक प्रेरणादायी है कि अगर हम अपने जीवन के अंदर शिक्षकों का सम्मान करें तो इसका लाभ हमारे बच्चों को कैसे होता है. मैं एक बात बताना चाहता हूं. हम सभी लोगों ने नारद का नाम सुना हुआ है. नारद जो है वो डायरेक्ट भगवान विष्णु के यहां जाते थे. और जब नारद डायरेक्ट भगवान विष्णु के यहां जाते थे तो बार बार उनका जाना होता था. एक बार नारद गलती से चले गए और वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहां जहां उनके पैर पड़े हैं वहां वहां की मिट्टी को निकाला जा रहा था और उसको फेंका जा रहा था. तो नारद ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है. तो उन्होंने कहा आपने गुरु धारण नहीं किया है, आपने टीचर नहीं बनाया है, इसलिए आपके पैर जहां जहां पड़े हैं
वो सारी मिट्टियां हम निकाल के फेंक दे रहे हैं, क्योंकि वो सारी मिट्टी जो है वो दूषित हो गई है। अब नारद जो है बड़े अचंभे में पड़े कि मैं डायरेक्ट भगवान विष्णु से मिलता हूं, भगवान विष्णु से डायरेक्ट बात करता हूं, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जाते हैं भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं आज जल्दी से वापस लौट आया और मैंने देखा कि आपके लोग जो है जहां जहां मिट्टी खराब है, मेरे पैर पड़े थे, उसको निकाल करके फेंक रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, हाँ आपने गुरु धारण नहीं किया है, टीचर नहीं बनाया है, इसलिए आपके जहां जहां पैर पड़े हैं वो सारी मिट्टी दूषित हो गई है, इसलिए हम उसे फेंक रहे हैं। तो वहां पर नारद डिसाइड करते हैं कि कल सवेरे मैं सबसे पहले जो व्यक्ति मिलेगा उसे मैं गुरु धारण करूंगा। नारद अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। सवेरे सवेरे नदी किनारे जब निकले तो सामने से एक मछुआरा आ रहा था। अब नारद संकट में पड़ गए कि सब सामने से जो मछुआरा आ रहा है उसे मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनको गुरु बनाऊंगा। और नारद जो है वो जाते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं कि आपको मैं अपना गुरु बना रहा हूं, टीचर बना रहा हूं। अब इसके बाद उन्होंने गुरु और शिष्य बना लिया और उसके बाद बड़े ही उत्साह के साथ फिर से विष्णु के दरबार में गए। जब विष्णु के दरबार में गए तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु को कि मैंने गुरु बना लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन नारद फिर बोले मैंने गुरु तो बना लिया लेकिन वो मछुआरा है। तो वहां पर भगवान विष्णु कहते हैं कि आप अपने टीचर गुरु को परंतु कह रहे हो, इसलिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। अब नारद जो है वो संकट में फंस गए कि कैसे करूंगा मैंने गुरु भी बना लिया, भगवान विष्णु की बात भी मानी, लेकिन मैंने परंतु लगा दिया, इसलिए मुझे अब जो है नरक में जाना पड़ेगा। अब बहुत टेंशन के अंदर जो है फिर से वो निकले और जब जा रहे थे तो उनके गुरु वहां से आ रहे थे सामने से। तो उन्होंने बताया कि अरे मैं तो संकट में फंस गया। बोले क्या? बोले मैंने ऐसा बात हुई और मैंने भगवान विष्णु को बताया कि मैंने गुरु तो बनाया लेकिन मछुआरा बना लिया, परंतु लगा दिया, इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब उनके गुरु ने उन्हें बताया कि ठीक है चलो मैं इससे मुक्ति का मार्ग तुम्हें बताता हूं, और उन्होंने उनके कान में कुछ कहा। अब वो फिर से गए भगवान विष्णु के यहां और भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे कहा कि आपको नरक में जाना पड़ेगा, तो मुझे नरक का नक्शा बना करके दिखाओ। भगवान विष्णु ने एक लकड़ी उठाई और वहीं पर जमीन पे एक नक्शा बना दिया प्लेन, और जब उस नक्शे को बनाया तो नारद तुरंत जंप मार करके उन नक्शे में बैठ गए। बोले वो नरक भी आपका बनाया हुआ है और ये नक्शा भी नरक का आप ही ने बनाया हुआ है, इसलिए मेरा नरक कंप्लीट हो गया। तो भगवान विष्णु बोले कि ये तू नहीं सीख सकता, तो ये किसने बताया? तो बोले ये मेरे गुरु ने बताया। तो ये गुरु की पावर थी कि भगवान विष्णु जो थे नरक से छूट गए। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग भी ऐसे टीचर को, ऐसे शिक्षकों का सम्मान करें और अपने जीवन में आपको अपने जीवन के अंदर में और उन्नति करने का मार्ग मिलेगा। तो ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiring words and thoughts. I would request Honorable Prashant Patil sir to please come and share few lines with us. हॅलो, आदरणीय प्रमुख पाहुणे, त्याचबरोबर मला कार्यक्रमाला उपस्थित केलेले आदरणीय पिंगळे सर, आमचे मित्र देशमुख सर आणि आमचे गुरुवर्य डॉक्टर संजय सिंग सर, आज आणि हे सर्व पालकवर्ग, आदरणीय प्रमुख पाहुणे, मान्य मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद,
प्रिय पालकवर्ग आणि माझ्या लाडक्या विद्यार्थ्यांनो, आज उभे राहून बोलताना मला खूप अभिमान वाटतो, कारण इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूल म्हणजे केवळ एक शाळा नाही, तर स्वप्नांना दिशा देणारे एक संस्कार केंद्र आहे. इथे येणारा प्रत्येक विद्यार्थी फक्त अभ्यास शिकत नाही, तर शिस्त, संस्कार, आत्मविश्वास आणि माणुसकी शिकतो. आजच्या या गॅदरिंगमध्ये विद्यार्थ्यांनी सादर केलेली कला, त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांची चमक हे सांगून जातं की आपलं देशाचं भविष्य हे सुरक्षित हातात दिलं गेलेलं आहे. म्हणजेच ह्या इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलमध्ये तुम्ही देताय ते एकदम सुरक्षित असं भविष्य दिलेलं आहे. प्रिय विद्यार्थ्यांनो, यश केवळ मार्कांमध्ये नसतं, तर यश असतं चांगला माणूस होण्यात, आणि तेच घडवण्याचं काम इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूल प्रामाणिकपणे करत आहे. शिक्षकांनो, तुमच्या मेहनतीला सलाम, कारण तुमच्यामुळेच एक साध्य मुलांना असामान्य क्षमता फुलते. पालकांनो, तुमचा विश्वास हीच आमची सर्वात मोठी ताकद आहे. आजच्या या सुंदर गॅदरिंगच्या निमित्ताने मी सर्व विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो, स्वप्न मोठी ठेवा, प्रयत्न प्रामाणिक ठेवा आणि यश तुमच्या पावलावर येईल. चला तर मग इनोव्हेटिव्ह वर्ल्ड स्कूलच्या यशस्वी वाटचालीस आपण सगळे मिळून एकत्र पुढे नेऊया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.